Hello all the Gia fans, welcome to the channel and thank you for joining me guys, and this reading is going to be on your favorite Gia Shankar. Let's see, make a prediction आपकी Gia के लिए कौन से gateways खोल रहा है. So God's God is angels, Archangel Michael, and this is the one guys. Embracing the future. It is time for you to step into the future. I step into the future with an open heart, not from the heart which is pre-programmed with all the hurt of the past guys. Okay, it's a message from the universe. तो मई का महीना आपकी जिया के लिए will be of stepping out with what? With her dreams, eyes focused on her dreams guys. Give me a moment, I need something. All right, so let's continue. This is the oh my goodness, this is like something more like opening the eyes, embracing the future, going towards the sun. But यहाँ पे जिस तरह से कार्ड्स मेरे दिया पे गिर गया था, I just get that. Let's see क्या होता है. More like some kind of experience. Anyways, let's see. We will go with the flow. God's goddess angels, Archangel Michael, spirit gods and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Gia for the month of May, for her fans. What is that she can know? What are the things coming her way? Okay guys, ये तो बहुत सारे cards हैं. I cannot take all these cards. Thank you for the divine guidance and blessings coming for Gia for the month of May. Yes, we have the card. Yes, it's time to let go the baggage that she is carrying for so long. ये जो baggage जो past का है ना, आप what are her baggages from the past. We have talked about it in detail जब भी वो show up हुआ है. You know her worries, you know her what she stands for, she believes in it, she stands for it, draws the boundary जो भी है. So ये baggage लेकिन काफ़ी दिन से वो carry कर रही है. And there is a very interesting story. A monk says the other person कि hold this glass, okay, hold this glass. तो उसको थोड़ी देर वेट पकड़े रहो. तो बोला कि डू यू फील एनीथिंग इन योर हैंड? नो. उस मंक ने उस इंसान को बोलता है, आदमी को बोलता है कि आप ये ग्लास को ना 10 मिनट पकड़े रहो, 15 मिनट पकड़े रहो. फिर थोड़ा थोड़ा हाथ में पेन होना स्टार्ट हुआ. तो द सेम थिंग, हाउ लॉन्ग यू कैरी द बैगेज, ये वरी, चिंता, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये थोड़ा सा कैरी करो तो इट्स ओके. लेकिन अगर आप कैरी करते ही जा रहे हैं क्योंकि ये 10 की साइकिल पूरा कर चुका है. इट इज़ टाइम कि ये बोझ को निकाल के उतार के साइड में रख दीजिए. लेकिन आप ये बोझ को कैरी करते ही जा रहे हो. 10 का मतलब ही है कि इस बोझ का जो आपके लिए यूनिवर्स ने चैलेंज लेके आया था, इसका समय ख़त्म हो गया है. अब आप अननेसेसरीली इसको कैरी कर रहे हैं. तो डेफिनेटली आप यू विल फील द पेन एंड इट इज़ जस्ट लाइक यू कैरिंग द बैगेज. So it's time for you to put this baggage aside. So let's keep on moving. And do what? Embrace the future with this childlike curiosity. Walk into the future. Subconscious level में क्या है? Hanged man से बाहर निकलने की इच्छा है. So she wants to move into it. Conscious level पे देखेंगे the chariot. हमारी chariot move नहीं कर रही है. Even though we want to move, going forward. किंग ऑफ सोर्ड इन रिवर्स में है. एटीट्यूड कैसा रहेगा? पेज ऑफ सोर्ड इन रिवर्स. एनवायरमेंट में क्या आ रहा है? 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड 10 ऑफ सोर्ड. देख रहे हो साइकिल एंड होने का कार्ड दिख रहा है. 10 and 10 एंड बूम 9 ऑफ कप्स आ रहा है. वाओ, good great stuffs coming for Gia fans also towards the end of the month. लेकिन पूरे मंथ बहुत ही चैलेंजिंग एनर्जी बनी हुई है. एक्चुअली कुछ लोगों की हो और इसी तरह की एनर्जी है. कलेक्टिव इज गोइंग थ्रू समथिंग. मोर लाइक यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू. अगर आप ये वाला मंथ 15th तक या इवन बियॉन्ड आप ये मंथ के चैलेंजेस को झेल लेते हो, great stuffs waiting for you towards the end of the month guys. Okay,
So that is I am definitely getting. और एक्चुअली डू यू सी कि किस तरह से दिया पे ये कार्ड गिर था, बट आई थिंक सम शॉकिंग इंसिडेंट विल गिव, जो कि यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट भी शायद ला रहा है उसके लिए, बट इट विल बी अ क्वाइट अवेकनिंग थिंग फॉर हर, एक बहुत ही मैसिव क्लैरिटी लेके आएगा. दिस इज जस्ट अ इंट्यूटिव हिट, इफ आई एम फीलिंग आई हैव टू टेल. तो कोई तरह का हाथ जलने वाला इंसिडेंट हो सकता है, हाथ जलेगा नहीं, बच जाएगी, बट नाउ दिस इज जस्ट यू नो ट्राइंग टू हेल्प यू एक्सप्लेन थिंग्स. मैंने कि हो सकता है कि कोई थोड़ी सी शॉकी टाइप की चीज़ हो, लेकिन इट विल नॉट हार्म हर और एनीथिंग, बट इट विल बी क्वाइट अ रिविलेशन टू हर. इस तरह की एनर्जी मैं फील कर रही हूँ. एक क्लैरिटी लाएगी उसके लाइफ में, एंड शायद वहाँ से ही उसका ब्रेक थ्रू आ रहा है. देख रहे हो ना, शी इज़ वॉकिंग आउट लाइक इनफ इज इनफ. नाउ 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड को मैं अपने सर पे ढो नहीं सकती हूँ. इट्स टाइम फॉर मी टू लीव ऑल दिस एंड वॉक आउट फॉर द फ्यूचर. और यहाँ पे फ्यूचर में जाते ही देखो, कभी कभी हम आगे बढ़ने से इतना डरते हैं, और वही यहाँ पे देखो न्यू बिगिनिंग किसी तरह की हो चुकी है उसकी, मे बी अप्रैल में. देयर इज सम न्यू एनर्जी कमिंग हर वे, लेकिन अब समय आ गया था कि आप इसको एक्चुअली इस कप, ये कप जो न्यू बिगिनिंग आपको यूनिवर्स लेके आया है ना, आपको क्या चाहिए था कि आप इस कप को ले लीजिए, राइट. बट आप क्या कर रहे हो, मुंह फेर के ऐसे बैठे हो और बस अपने ही इस बोझे में फंसे हुए हो, लदे हो, फंसे हो, इधर देख ही नहीं रहे हैं आप, है ना. एंड दिस इज वॉट आई एग्जैक्टली एक्सप्लेन्ड यू, कि हमको कभी कभी इसी एनर्जी में जीने की आदत हो जाती है. हम अपनी रियलिटी इसको बना लेते हैं कि इससे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, है ना. और ये कॉन्शियसनेस, किस कॉन्शियसनेस पे हम लिव कर रहे हैं, दिस इज 0 लेवल कॉन्शियसनेस, वेयर वी आर इनटू दिस विक्टिम कि चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी, इट विल ऑलवेज बी डिसअपॉइंटिंग एंड आई विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड एंड ऑल दैट. बट ये बोझ को आपने बहुत ज़्यादा अपने सर पे बैठा लिया है, एंड इट इज़ टाइम फॉर यू टू थ्रो इट अवे. इसका टाइम ख़त्म हो गया है. अब आप वैलिडिटी पीरियड से ज़्यादा इसको कैरी कर रहे हैं. इट विल इम्पैक्ट यू, नो. एनीवेज, लेट्स कम बैक. तो एग्जैक्टली वही है, कॉन्शियस लेवल में एक न्यू बिगिनिंग आ गई है, एक स्टार्ट आपने ले लिया है पास्ट में, तो आप उस पर अपनी चैरियट को आगे बढ़ा के क्यों नहीं जा रहे हो. आपका चैरियट क्यों रुका हुआ है. हालांकि सबकॉन्शियस लेवल में आप चाहते हैं मूव करना. ये पास्ट का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हुई है, अभी तक तो उस पर वॉक करना स्टार्ट हो जाना चाहिए था ना. यू शुड बी ऑलरेडी वॉकिंग ऑन दिस. Why is she not able to walk? Because she is still carrying the baggage. She is not moving out. Chariot in reverse, not moving out. तो मुझे लगता है यूनिवर्स, to give it her a little shrug, something can happen which will bring some kind of awakening to her. एक तरह का लाइटनिंग होगा. सूर्य की रोशनी में हर चीज़ क्लियर हो जाती है ना, और हम क्या करते हैं फिर, ये सारी चीज़ों को एक उसको कंफर्ट जोन से हटाने के लिए कुछ हो सकता है क्यों. तो यहाँ पे वॉकआउट कर रही है. यहाँ पे भी देखो 10 ऑफ सोर्ड है, इससे निकलने की कोशिश कर रही है पर निकल नहीं पा रही है. इससे भी निकलने की कोशिश कर रही है पर निकल नहीं पा रही है. कहीं ना कहीं वही स्टक है, जिस चीज़ को छोड़ के जाना चाहती है उसी में उलझी हुई है. देख रहे हो ना, सेलफोन पे शी इज स्क्रोलिंग समथिंग. तो जिस चीज़ को छोड़ना तो चाह रही है पर छोड़ के जा नहीं पा रही है. एक तरफ से यू नो, हम बोलते हैं ना कि हम एक तरह के कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, या फिर हम उसी को अपनी रियलिटी समझने लगते हैं, और न्यू बिगिनिंग आते हुए भी हम लेते नहीं हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वॉक इन फ्यूचर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम रेडी तो है निकलने के लिए पर हम निकल नहीं रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो किंग ऑफ सोर्ड काफ़ी कंफ्यूज है, और इन दोनों कार्ड्स के बीच में ये कार्ड आ गया है. यानी कि एक तरफ बहुत सारा बैगेज, एक तरफ बहुत सारा हर्ट इज कीपिंग हर स्टक इन नॉट बीइंग एबल टू डिसाइड एंड मूव फॉरवर्ड. तो ये स्टक एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स ये दोनों के कारण आ रही है. और यहाँ पे भी देखो किसी तरह का 5 ऑफ कप्स का सिचुएशन है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक तरह की सिचुएशन जो शॉकिंग हो सकती थी, डिसअपॉइंटिंग हो सकती है, थोड़ा संभल सा जाता है. एनीवेज, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है. पेज ऑफ सोर्ड है,
आगे भी बढ़ना चाहते हैं, कंट्रोल में लेना चाहते हैं सिचुएशन को, ये बोझ को फेंकना चाहते हैं, इससे बाहर आना चाहते हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं, है ना, बेबी स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं। आगे में जाके ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स शी कैन गेट मोर कंफ्यूज्ड मिडल ऑफ द मंथ तक, लेकिन बूम विद दिस 9 ऑफ कप्स शी इज़ एब्सोल्युटली गेटिंग बैक इन कंट्रोल, पावर में आ रही है, अपने कुछ विश फुलफिलमेंट भी हो रहा है, एक अच्छा मंथ साबित होगा उसके लिए। Yes, death of something. Something is coming to an end. Big time, guys. Okay? Yes. एक न्यू बिगिनिंग। एक्चुअली मैंने पूरी रीडिंग ऐसे ही आपको एक्सप्लेन की है ना। सी कुछ चीज़ का जो जिसका डेथ हो गया है, आपको भी समझ में आ गया कि एक फेज एंड हो गया, आप उसको ज़बरदस्ती का कैरी कर रहे हो। न्यू बिगिनिंग आ गया है, ले नहीं रहे हैं, उसी को स्क्रॉल करके देख रहे हैं, और उसके बाद क्या कर रहे हो, एक यूनिवर्स के तरफ से कुछ एक अवेकनिंग आएगा, एंड दैट अवेकनिंग विल ब्रिंग यू सो मच ऑफ क्लैरिटी, एक सन की क्लैरिटी लाएगा, कोई 2 ऑफ कप्स सोर्ड का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जब मैंने शफल किया था कार्ड तो आपने देखा था ना, सन का कार्ड और 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड कैसे गिरा था। वो 2 ऑफ सोर्ड के कंफ्यूजन को हटा के एक सन की क्लैरिटी लाएगा, और आपको ये चीज़ जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो, जिसका डेथ ऑलमोस्ट हो चुका है, तो आपको बाहर फेंक जाएगा कि इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज द गाइडेंस, ब्यूटीफुल गाइडेंस कमिंग फॉर जिया। 9 ऑफ कप्स के साथ विश फुलफिलमेंट इन द फ्यूचर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप देखो भी द वे द कार्ड्स आर ओवरलैपिंग, यहाँ पे वो चीज़ों को, अपने बोझे को फेंक के आगे बढ़ती है। ये 10 सोर्स जो उसकी पीठ में लगे हैं, इसको निकाल के वो आगे बढ़ती है। बूम, शी इज गेटिंग इनटू दिस एनर्जी, पावरफुल एनर्जी, जहाँ पे वो अपने ड्रीम्स मैनिफेस्ट कर रही है। राइट, ओके, सो लेट्स सी गाइडेंस कमिंग फॉर हर। विजडम, इनर विजडम तो है ही, उसको कहीं ना कहीं पता है कि इस सिचुएशन को मुझे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। न्यू बिगिनिंग जो मैंने स्टार्ट की है ब्यूटीफुल सी, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए, जानबूझ के स्टक नहीं रहना चाहिए। तो यूनिवर्स भी यही बोल रहा है कि तुम्हें हमारी विजडम की ज़रूरत नहीं है, यू नो दिस योर सेल्फ। और क्योंकि एक कार्ड यहाँ पे ये आ गया है, तो मैं यही ले लेती हूँ उसके लिए। दिस मस्ट बी हैविंग सम मैसेज फॉर हर। सरेंडर टू व्हाट इज है, डोंट फाइट, क्योंकि वो स्टक है ना अपनी सिचुएशन में, शायद उसको चेंज करना चाहने का सोच रही हो या क्या, बट इट इज़ हर गाइडेंस की वॉक आउट। डोंट, एक्चुअली इंटरेस्टिंग इनफ, फ्लो विथ वॉट इज, फ्लो विथ वॉट इज। क्या है ये चीज़ें एंड हो रही हैं जो भी है, वॉट इज you, when you can't change a situation, compassionately accepting it exactly as it will bring you peace. एक्सेप्ट करो, लीव करो, मूव ऑन करो, अबंडेंस को पाओ। फिर भी मैं एक कार्ड निकाल देती हूँ उसके लिए। फियर है, आगे बढ़ने का फियर है, एब्सोल्युटली फियर होता है ना, हम सबको आगे बढ़ने से फियर होता है। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है ये फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन जब हम रिस्क लेते हैं, वो कौन सा ऐड है, डर के आगे जीत है। जब हम रिस्क लेके इस डोर से आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 9 ऑफ कप्स, बूम बूम बूम, विश फुलफिलमेंट। बट यही है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। शायद आपको पता ही होगा कि जब वूम में बच्चा रहता है तो उसको बहुत डर लगता है, उसको लगता है कि माई लाइफ इज गोइंग टू एंड नाउ, व्हाट विल हैपन, आई हैव बीन इन दिस डार्क कॉर्नर, कोजी कॉर्नर। काफ़ी दुख तकलीफ भी उसको अच्छी लगती है, क्योंकि अ नोन थिंग इज ऑलवेज, नोन डेविल इज ऑलवेज बेटर देन द स्ट्रेंजर। तो उस वूम में उस बच्चे को, इवन तो वो बहुत ही कष्ट में बच्चा रहता है मदर के वूम में, तभी भी उसको लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि एटलीस्ट मुझे जान पहचान है। अभी मैं बाहर आऊँगा वर्ल्ड में, क्या होगा, मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। बट एट दैट टाइम ऑल्सो ओनली उसको पता नहीं है कि ज़िंदगी ब्यूटीफुल कलरफुल ज़िंदगी शुरू हुई है, and there will be so many things to experience and explore and expand your consciousness in this beautiful world which will offer you the experience of duality. उसी के लिए तो उसका सोल आया है ना। So this is what it is. We are scared but we don't know what is waiting for us on the other side of the rainbow. And ये बिल्कुल रेनबो की तरह ही लग रहा है। So that was the guidance coming for your Jia. I hope that this helps you guys, and if this helps you, please like, share and subscribe, and I will see you in the next reading. Bye for now, guys.